So good evening, everyone. So all the people who have joined it off us offline, as well the viewers who would be watching us online. ठीक है. So in the last lecture yesterday, हमने क्या किया था कि essay paper 2025 का section A we had already discussed. So if you are interested, you can go and watch the lecture that was held yesterday. That was part A or section A that we had already discussed. So the topics for section A were truth knows no color, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Next it was thought finds a world and also creates one, and the best lessons are supposed to be learned through bitter experiences. So these were the four topics, that is section A, जो हमने कल already कर लिया था. Right, now let us move on to section B of this particular paper. Right, now very interestingly section B was also philosophical in nature. Right, so the first topic of this section B was that muddy water is best cleared by leaving it alone. We will be dealing all these topics in detail, but let us first understand and appreciate the depth and the beauty with which UPSC has framed these topics. Right. So this topic is traditional Chinese wisdom kind of thing, that the basically Zen wisdom, right? That muddy water is best cleared by leaving it alone. Next, coming to the next topic, the ears teach much. You see and appreciate the beauty of this topic. What they are saying is that the ears teach much which the days never know. That means a person in its course of maturity, a long term haul learns much more than what instantly the days have to offer, right? Which also means that in a day perhaps you could learn knowledge, but in years you would gain what? Wisdom. You remember, Satish, I constantly keep on telling this thing also, that there has to be a differentiation between wisdom and knowledge and information. These are the differences. Third was, it is best to see life as a journey and not as a destination. And lastly, contentment is natural wealth and luxury is artificial poverty. Now, as per my discussion with the students that they gave, which gave the paper yesterday, which appeared in the paper, most of them have attempted this question, and the strike rate for this one, sorry, has been the least. Means least number of students have selected this particular topic, and the maximum number of students have selected this topic. That has been my understanding. So without further ado, let us begin our discussion with respect to topic number 1, that is muddy water is best cleared by leaving it alone. So we will be following the same methodology of questioning, kind of finding the derivative, that why is it so that the muddy water is best cleared by leaving it alone. Now again, since these are the philosophical topics, so these are obviously metaphorical in nature, abstract in nature. So muddy water is what? They are not saying literally muddy water. Muddy water is a metaphor, right? It is a metaphor for conflict, you can say. ठीक है. Muddy water is a metaphor for disturbance also, you can say, right? It is a muddy water is an example or manifestation of what? Turbulence, you can say. So muddy water is best cleared means turbulence. For example, turbulence, it would be best cleared by leaving it alone. If you, for example, throw a stone in a pond and the stone reaches the bottom level, okay, what will happen is that sediments will come up. Now what is the best approach to make the water again clear? Right, the best approach is it to throw another stone?
Is it to further kind of create a turbulence or ripples in the water? No, the best way is to leave it alone. Stillness would ensure that the water settles down and things get to its natural order. Stillness or clarity क्या है? ये natural order of things है. तो natural order of things को reach करना है तो क्या करना पड़ेगा? Sometimes, it is not always, but sometimes, or as per the writer, best the best way to clear the muddy water is to leave it alone. Again, this quotation is, again, it is inspired from Zen philosophy, the Buddhist and Zen philosophy of China, ancient Chinese wisdom, right? So again, let us try to deconstruct this topic, muddy water. Two keywords are there: leaving it alone. What is the meaning of muddy water? Can we say that the meaning of muddy water is, for example, can we say the meaning of muddy water is conflict or turbulence, right? Conflict, turbulence. Can we say that lack of peace or disturbance? Disturbance, right? What is the meaning of cleared? What is the meaning of cleared? Best cleared. It is saying it is best cleared by leaving it alone. What is the meaning of cleared? Cleared means the ultimate or the natural, ultimate or the final or natural state. That is, for example, if we say that muddiness or turbulence of water is indicated by conflict, what would be the cleared stage? Cleared stage would be stage of tranquility, peace, ठीक है, original state. Similarly, what is the deconstruction of leaving it alone? Leaving it alone क्या reflect कराता है? What is the meaning of leaving it alone? If I ask you कि भाई leaving it alone का meaning क्या है? To have patience, to have a philosophy of patience, non-interference, right? और कुछ लिख सकते हैं? Can we say that again the interpretation of leaving alone means let nature take its own course? ठीक है, nature is what? Nature is a great equalizer. ठीक है, तो let nature take its course. समझ गए इतना? तो ये तो हो गया लिटरल, हमने उसको डिकंस्ट्रक्ट किया है टॉपिक को इंट्रोडक्शन में. When we will be making a rough work, rough sketch, तो सबसे पहले डिकंस्ट्रक्ट करना होता है टॉपिक कि what can be its likely interpretation. Now the first dimension that would be most desirable to understand, to further open up the topic, is why. You always try to ask, now why is it so? क्यों है ऐसा? If I ask or seek some argument from you that why is it so that muddy water is, always keep on asking that why is it so that muddy water is best cleared by leaving alone. Why is it so? There must be something virtuous, right? There must be something virtuous about leaving things alone. You get my point? So
So try to generate some explanation, try to generate some dimensions. What could be the likely dimensions of understanding this y aspect of this essay? The y aspect is, for example, the first point can be psychological dimension. Can we say it is can we take the defense of psychological dimension? Can we say that when we are in a state of turbulence, can we say that when we are in a state of turbulence, so what happens to our mind? Our mind starts to overthink. Okay? When it starts to overthink, it gets stressed. And if we take certain kind of decisions in a state of anger or in a state of stress, it is going to do nothing else but further compound the problem. Right? State of turbulence leads to stress. बैड डिसीजन मेकिंग होगी यहाँ पे. Can this be one argument that it would lead to bad decision making? It will make matters further worse, right? Or we can say that if we take a strategic pause when we are angry, right? When we are angry and we take a strategic pause, what does it do? It allows or gives us time for conscious processing, right? Can we look at it in terms of social dimensions? What are the social aspect of for this particular dimension? Have we seen in our society, for example, if I ask you and say that we are trying to do forced interventions, so are, are they good and favorable at bringing certain positive results? What is the validity of these forced interventions? Do they last long? No. Forced interventions are like further muddying the water. The forced interventions are like the second stone that we cast upon the pond in which there was already certain turbulence. ठीक है, तो फोर्स इंटरवेंशन क्या करने वाले हैं? वो फर्दर उस चीज को एग्जैजरेट करने वाले हैं या कंपाउंड करने वाले हैं. दे आर गोइंग टू फर्दर वर्सन द सिचुएशन. Right? Now, another, you try to generate another why, that what is there in time, that it, why is time called the greatest healer? क्यों बोलते हैं ऐसा कि टाइम सबसे बड़ा हीलर है? Tell me. with time with time our emotional energy dissipates, and when this emotional energy gets dissipated, we are likely to make more rational decisions. So ये तो हो गया हमारा why aspect of the essay. So should we go on and think about what could have been an adequate, a perfect kind of introduction for this topic? कोई अच्छा सा introduction suggest करो. Can we start with the quotation? Yes, we can start with a quotation also. Yeah, we can go on and start with start this topic with an anecdote also, right?
So again, there was a great Chinese philosopher by the name of Lao Tzu, right? He had said that muddy water is kind of best cleared by leaving it alone. And you let us try to connect that ancient philosophy. For example, in introduction, can we say that the reverberations of the ancient wisdom, ancient Chinese wisdom, or ancient Indian wisdom also, it still resonates with what the neuroscientists are today saying. And they say that overreaction often deepens our confusion and patience brings clarity. Right? So introduction में या तो you can start with an anecdote, you can write some good moral story also, right? You can link ancient wisdom with its modern manifestation, कोई modern research जो उसको validate करती हो, ठीक है, इससे लिख सकते हैं. आई रिमेम्बर एन एंशियंट चाइनीज स्टोरी जिसमें क्या होता है कि ए मॉन्क इज ट्रेवलिंग विद टू ऑफ हिज डिसाइपल्स और रास्ते में एक नदी पड़ जाती है, देयर इज ए रिवर, राइट. तो होता क्या है कि अ, जो मॉन्क होता है दैट रास्ते में वहां पे उनको एक लड़की मिलती है, ठीक है. तो शी इज नॉट एबल टू क्रॉस द रिवर, बट दीज आर सपोज टू बी द एक्सपर्ट स्विमर्स या जो भी है. तो शी आस्क्स हेल्प फ्रॉम द मॉन्क. अब मॉन्क कहता है कि ठीक है, आई कैरी यू ओवर माई शोल्डर और ओवर माई बैक एंड आई मेक यू क्रॉस द रिवर. अब लेटर ऑन वन ऑफ द टू डिसाइपल्स हु इज अपेरेंटली डिस्टर्ब्ड बाय कि भाई आपने हमारा एस्थेटिक ऑर्डर तोड़ दिया, ठीक है, देयर वाज सपोज टू बी एन एस्थेटिक ऑर्डर एंड यू हैव ब्रोकन दैट प्लेज और सो बाय गिविंग हेल्प टू दैट मेडन. So the monk replies that I left that maiden on the next bank only. Just after crossing the river, I left that maiden on that particular bank of other bank of the river only. But you are still carrying it over till now, right? तो ये कह के हम क्या वैलिडेट कर सकते हैं कि उसका जो डिसाइपल था उसका माइंड जो था वो स्टिल टर्बुलेंट था, और जो जो सीनियर मॉन्क था या फिर जो मास्टर था उसका माइंड जो था वो स्टिल था, इसीलिए उसने उसको वहीं पे छोड़ दिया. कैन दिस कैन बी अ वेरी गुड वेरी परफेक्ट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर दिस टॉपिक, राइट? So now let us try to open this up. Let us try to open this topic with the help of various kind of dimensions. अब हम ना हमारा इंट्रोडक्शन सेट हो गया है. We have also generated a kind of the why, the reasoning behind it, right? अब next काम क्या बचता है? To come into the body part of the essay, right? तो हम various dimensions explore करेंगे. What can be the likely dimensions? Let us try and explore. The first dimension that would be there, क्योंकि the bent of the mind of essay is philosophical in nature. This is a philosophical essay, right? So we'll try to validate this thing with the help of philosophical doctrines. तो पहली philosophical doctrine is, for example, we can use stoicism. What do stoics say? Patience and control is more virtuous than reaction, which means patience is more virtuous than reaction. You don't have to be reactionary. So, does this philosophy validate the core argument or the title of the essay? Right? तो ऐसे ही हमें एक्सप्लोर करना है. Again, you go to Taoist philosophy, Taoism. Taoism क्या बोलता है? The best or the wisest action is to let nature take its own course. Let nature take its own
let nature take its own course. Can we say that the philosophy of Mahatma Gandhi with respect to non-interference and passive resistance instead of aggression was also aimed at validating this thing only? Mahatma Gandhi he had huge mass support only. At his just one statement, one aggressive statement, people would have gone mad and they would have attacked various institutions and the whole empire, right? But again, he kind of knew that muddy water is best cleared by leaving it alone. So his philosophy, his strategy of passive resistance was better than aggression, because somehow he knew that this whole setup, his whole architecture of empire is based on turbulent, non-consistent means on which they have established the empire over us. So just give it some time and they will collapse on its own as long as we maintain our moral authority. Can we move on and generate another dimension? First हमने दो चीजें देख ली, philosophical देख ली, dimension एक psychological dimension देख ली. Can we go on and move towards a polity governance IR? Can we go on and look at it through the lens of IR? If you may recollect, हमारी एक philosophy थी, हमारी एक doctrine थी non alignment movement की. So can we say that the whole Cold War or uh, the era of armed conflicts that was muddying of water? ठीक है, muddy water क्या है? Metaphor है किस चीज का? Cold War का, block politics का. It is best cleared by leaving it alone. So नाम was something, हमने क्या किया? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया कि वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर मेस. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. Another, what can be other dimension? You think? Can we say the game of diplomacy is all about having patience? Sometimes the best response is no response. तो अभी करंट एग्जांपल की तरह एक्सप्लोर करो. Did India take any sides in Iran, Israel and Palestinian conflict? We said no, we don't want to be. The best way to clear it is to do nothing, right? Eat 5 star, do nothing. ठीक है. So we maintained a kind of strategic silence plus call for peace. This is again coming from our own ancient wisdom. Non-alignment, maintaining strategic silence and continuously inviting them for peace. ठीक है. Again, can we take the example of India-China border defense cooperation agreement? So, multiple rounds of talks in which we are trying to settle peace, right? This can be explored. India-China. Let us move on to the next dimension now. What else can be a dimension to this topic? Can we take an example of economy? Can we open this dimension, and how can we open this dimension? So there is this philosophy by Adam Smith
What does he say? Free hand or invisible hand. So the inherent idea is that there too much intervention by the state or too much control by the state would ruin the economy, and that means ruining of entire structure of society, right? So ये भी again best ways, not having too much or absolute control or too much intervention. ठीक है? Again we come to our own history, historical examples, historical past. What we were doing, license raj. License raj is again one example. तो लाइसेंस राज में क्या हो रहा था? It was further kind of stirring and stirring and stirring of muddy water. ठीक है? And LPG reform was something that stopped it. We moved towards LPG reforms. समझ गए बात को? तो यही सब लिखना है इसमें. Can we again go on and move it to some current recent dimensions from societal aspect? Sometimes social issues, social disputes. Is it necessary to always intervene or interfere in these disputes? Sometimes the intervention is counterproductive. You have to take an approach where you have to take certain kind of patience, and this patience would lead to settlement of disputes. The best example of this would be social media. Social media क्या करता है? Social media, what is social media? It is inherently a selfish medium. ये क्या करता है? फर्दर मडी वाटर को अपने पर्सनल गेन के लिए सेटल नहीं होने देता. Any small or local or very trivial issue becomes a national issue. ठीक है? तो अगेन these are the vices of social media. You can go on and continuously, भाई इस पे हम एक पूरी डायमेंशन बना सकते हैं, सोसाइटी एंड मोर इम्पोर्टेंटली रोल ऑफ मीडिया और सोशल मीडिया को मिला के हम एक पूरी डायमेंशन जनरेट कर सकते हैं. ठीक है? तो यहाँ तक हम 4 से 5 अराउंड डायमेंशन जनरेट कर चुके हैं. एक साइकोलॉजिकल लेवल पे, एक वर्चू एथिक्स के लेवल पे, then we generated dimension on historical aspect, then we generated dimension on polity and governance and IR aspect, फिर एक सोशोलॉजिकल और सोसाइटल लेवल पे कर लिया, एक इकोनॉमी के लेवल पे कर लिया. एंड आई बिलीव these 5-6 dimensions would be sufficient for you to extensively fill actually the entire body of the essay. ठीक है? Now this thing has been validated. अब क्या ऐसा कुछ देख सकते हैं कि कोई काउंटर व्यू भी है क्या इस चीज का? कैन यू गिव मी सम काउंटर पर्सपेक्टिव सतीश? Sometimes we can see this is a arguable philosophy. This since this is a Chinese wisdom still, but it is a kind of arguable philosophy. ये absolute terms में नहीं है. तो we can generate a counter dimension also. ठीक है? Let us try and identify. काउंटर डायमेंशन भी कुछ डालते हैं. वेरी गुड. सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन इन द मैटर ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट्स. ठीक है? कभी कभी क्या होता है इन सोसाइटी,
if you leave a social evil alone, it kind of gets worsened. तो strategic और timely intervention भी जरूरी है. State is what? State is a moral agent. State is first of all a moral agent. तो to uphold the morality of society किसका काम है? For developing countries, for post-colonial nations, it is considered that state is not a governing agent. It is a development agent of development. और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि स्टेट एक मॉरल एजेंट भी है. तो एज ए मॉरल एजेंट स्टेट का काम क्या है कि कोई सोशल इविल्स हो रही हो तो ऐसा नहीं है कि स्टेट अपना मुंह इधर फेर लेगा, कुछ हो रहा है होने दो. स्टेट हैज टू समटाइम्स एक्टिवली इंटरवीन ऑल्सो. रोल ऑफ स्टेट एज ए moral agent. Moral agent or moral agency. As a collector, as a SP, you get posted to certain district in which very kind of regressive practices are going on in certain community, let us say. So will you go and say कि sometimes the muddy water is best left by leaving it alone and you will move on to the next district? No, this cannot go on like this. You'll have to at some point of time do some intervention because it is expected out of you as a moral agent, right? For example, let us say at present times climate denialists जो हैं उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डोमिनेट करने लगा है. तो कैन वी अफोर्ड टू लुक द अदर वे in the issues of climate change? Can we afford? No, we cannot afford. In the issues of, for example, systematic injustices, we cannot say कि eat 5 star do nothing. वो वाली फिलॉसफी यहाँ पे काम नहीं आएगी. तो हमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन इन जगह पे करना पड़ता है. ठीक है, और कुछ can we settle this debate as of now कि mostly we have to agree to it that the best philosophy, sometimes it so happens that the best philosophy is to leave the thing alone so that the turbulence settles. We explored it in various dimensions also. हमने फिर कुछ counter points भी दिए कि कुछ certain points पे intervention becomes a necessity. अब यही again go into the IR dimension. अब रवांडा में हो रहा है भाई जीनोसाइड, ठीक है, तो रवांडा में जीनोसाइड हो रहा है तो कोई बोलेगा कि बेस्ट वे इज टू लीव इट अलोन, वट एवर द पर्सन द मिलिट्री जनरल इज डूइंग इज राइट, ओके कुछ करना ही नहीं है. तो फिर व्हाट इज योर ड्यूटी एज ए डिप्लोमैट, as a as a responsible member of the committee of nations? What is your duty then? Why are you there? ठीक है, it raises an existential question to for you. तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, इंटरवेंशन करना भी जरूरी हो जाता है. इसराइल पैलेस्टीन वॉर एंड डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वेरी नाइस. ठीक है, देन अब कंक्लूड कैसे करोगे इसको? हाउ विल यू कंक्लूड इट? तो एक बैलेंस्ड वे देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन सोसाइटीज एंड ह्यूमन रिलेशंस आर नॉट मशीन्स. We are made up of emotions, we are made up of values. ठीक है, so we are not machines. हमें मशीन की तरह नहीं देखना है कि we are constantly tinkering with you. तो constant tinkering means muddying the water, but at the same time we have to ensure that a course correction or self correction mechanism is developed. जहां पे कहीं पे प्रॉब्लम आए वहां पे इंटरवेंशन करना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है. ठीक है, ए वाइज रिस्ट्रेंट इज नेसेसरी, पेशेंस इज नेसेसरी, ट्रस्ट इन द रिदम ऑफ लाइफ इज नेसेसरी, बट एट सम टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, if it so emerges that intervention is required, तो इंटरवेंशन करना पड़ेगा. समझ गए बात को? ऐसे करके कुछ पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड कर दोगे. और इंटरवेंशन कैसे करोगे? अगेन यही स्ट्रेटजीज हैं भाई. स्टेट एज ए मॉरल एजेंट, तो मॉरल ड्यूटी बन गई इंटरवेंशन करने की. R2P डॉक्ट्रिन हो गई. व्हाट इज R2P डॉक्ट्रिन? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट.
दिस इज ए डॉक्ट्रिन कि भाई कहीं पे ऐसा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो गया है जहां पे आपको इंटरवेंशन करना जरूरी हो जाता है, तो इंटरवेंशन फिर हम करेंगे. Done with this essay, I think we have got enough firepower to write a 12-13 pages essay. ठीक है. Let us move on to the most interesting topic of this year. This was the best topic according to me. मुझे सबसे अच्छा टॉपिक यही लगा. Let's try to open this up. And again, these lines are taken from the one of the most legendary philosophers and thinkers of the recent times, Ralph Waldo Emerson. What is the nature of this essay again? What is the nature? Reflective. Can I say that this is again a reflective nature? Philosophical, abstract. ठीक है, तो इसका भी नेचर ऐसा ही है. Let us try to break it down. Years teach. What is the meaning of years teaching? The days never know. दो पार्ट हो गए इस ऐसे के, राइट? The first part is the years teach much which the days never know. So सोचो, ऐसे सोचो कि देयर मस्ट बी समथिंग इन ईयर्स, देयर मस्ट बी समथिंग इन द लॉन्ग टर्म. कुछ अचीवमेंट ऐसे होंगे जो कि लॉन्ग टर्म में ही हो सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल. ठीक है. what is the this is again a metaphorical line. So what is its interpretation? Years teach means long term रिफॉर्म. ठीक है. और फिलोसॉफिकल हाइंडसाइट wisdom. Can wisdom be achieved in one day or two? Can it be achieved? It cannot be. The days never know. Days never know. डे का नेचर कैसा है? इमीडिएसी है. इसमें एक नेचर ऑफ इमीडिएसी है, इंस्टैंटेनियसनेस है. इमीडिएसी. Instant. Day is only 24 hours. This is 24 hours. And year is 1 year is 24 into 360 365. समझ गए? तो ऐसे ही है कि भाई डेज में कुछ होगा नहीं, विजडम तो नहीं आएगी. इंफॉर्मेशन आ जाएगी, नॉलेज आ सकती है किसी चीज के बारे में, बट विजडम नहीं आएगी. ठीक है. अब अगेन ट्राई टू ओपन द फिलोसफिकल डायमेंशन. द वाई एस्पेक्ट को थोड़ा सा ओपन करेंगे हम. ठीक है. तो what is the rationality behind saying that the years teach much which the days never know? So we would start with the premise that there is a difference between two things, knowledge and wisdom. There is a difference between knowledge and wisdom. Single day. What is single day? What can single day achieve? It can only, हम किसी इवेंट को दैट पर्टिकुलर डे पे हुआ है, ठीक है, तो हम उसको एज एन इवेंट ही देख सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली एन एयर इंडिया प्लेन क्रैश्ड इन अहमदाबाद. ऑन दैट पर्टिकुलर डे we saw it as an event कि let us say for example 200 people unfortunately died in that event. उस दिन को हम सिर्फ नॉलेज या इंफॉर्मेशन के टर्म्स में ही देख सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर प्लेन
crashed. But wisdom would be why did it happen. तो फॉर्मल रिपोर्ट सबमिट होगी, ठीक है, उस पर इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट सबमिट होगी, एंड देन व्हेन वी डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी रिफॉर्म्स जब डेवलप करेंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स में चेंज लाएंगे, सो दैट दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट डज नॉट हैपन अगेन, ठीक है, तो दैट कैन ओनली बी अचीव्ड ओवर द ईयर्स, वो विजडम से ही आता है, ठीक है। अगेन डे का नेचर कैसा है, बहुत ही शॉर्ट है, तो डिसीजन वुड बी इंपल्सिव इन नेचर, इंपल्सिविटी होगी इसमें, इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग होगी डे के अंदर, ठीक है। विजडम, व्हाट डज विजडम डू, विजडम टेम्पर्स आवर माइंड, विजडम टेम्पर्स आवर माइंड, means it shapes our long term attitudes towards things, समझ गए बात को, तो लॉन्ग टर्म एटीट्यूड जो है ना वो ईयर्स में ही फॉर्म होता है, ऐसा हम थ्योरी ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन में भी पढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म में ही यहां पे क्या होगा, इमीडिएसी में, इमीडिएट इवेंट में क्या होगा, रिएक्शन होगा, जैसे हम स्टोइक फिलॉसफी की बात कर रहे थे ना, फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू एंगर, तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, इन ए डे यू विल ओनली बी एबल टू रिएक्ट, बट इफ वी सी इन ईयर्स, व्हाट कैन वी डू इन ईयर्स, वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर हैबिट्स, हमारा हैबिट फॉर्मेशन कब होगा, हैबिट फॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कब होंगे, दे कैन ओनली हैपन इन द long term. Only in long term will you be able to see. For example, let us take another single example, that you guys, you are preparing for civil services, right? Just the day before the exam, you say that yes sir, tomorrow is my exam and I have studied 12 hours a day. Will it be able to reflect or change your destiny in the paper? You have not studied for the whole year and you think that yes sir, just tomorrow there is exam and I'm going to clear it, I'm going to get top marks, I just studied for, in the past 24 hours I have studied for 12-13 hours. Is it going to help you? No. But if you have consistently studied for 6 to 7 hours for the whole year, right, or so, it will develop what, it will develop networking of ideas, it will develop wisdom, it will develop a perspective, an approach towards answer writing, so that would be reflected in your paper and then you would get selected, समझ रहे हो, तो there must be something in those years, wisdom acquisition and its implementation वो तभी हो पाएगा जबकि आप years और many years of practice करेंगे, instead of trying to find instant gratification or instant quick fixes by studying perhaps for 1 day or 12 hours or 13 hours. It's not going to help you anything with anything, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज है, ये तो फिलोसफिकल बैकग्राउंड हो गया इसका, रीजनिंग रेशनैलिटी हमने डेवलप कर ली, let us try to break it down, let us move on to the body. But before moving on, can I say, can you give me some anecdotal reference, introduction कैसे करेंगे इसका, कुछ anecdote, कुछ quotation if you have. Try to write an introduction to this and come again tomorrow, ठीक है, and just try to submit ki what could have been the best introduction for this kind of essay, okay, ठीक है. Moving on to the body, what can we write in body, how can we open up various dimensions at individual level, at individual level. What can we, what can a day teach at an individual level? A day can only teach certain kind of experience, a short term experience,
लिखते हैं यहां पे डे और यहां पे लिखते हैं ईयर। शॉर्ट टर्म में क्या होगा? एक्सपीरियंस। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा? दैट एक्सपीरियंस वुड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेशन टेक्स ईयर्स, गुड हैबिट फॉर्मेशन टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो दिस इज द, कैन वी ओपन ए डायमेंशन, कैन वी ओपन ए होल डायमेंशन ऑन पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, you can take example of some great person, great personality who succeeded, but because of his character that he developed over the years, instead of, and compare that personality with some other, let us say, personality जिसको instant success तो मिल गया, but that success was short lived. ठीक है, when you compare and contrast, you will be able to prove that the years, what is the topic? The years teach much which the days never know, and days never can. Let us, for example, the best example would be Thomas Edison. Can you give the example of Thomas Edison? 10,000 iterations. For every day, the days never know. हर दिन उसका एक बल्ब फेल होता था. For every day, maybe perhaps एक या दो बल्ब उसके मॉडल्स फेल होते होंगे. But over 10,000 iterations, over 10,000 iterations, he was able to successfully integrate and build a bulb for us, right? So that, again, reiterate the following and appreciate the essence of this essay, that the years teach much. Years taught him what? Perseverance, that you have to continuously experiment, that you don't have to stop, go to the other element, go to the other filament, go to the other material, experiment with this particular gas, experiment with that material, experiment with X gas, Y gas, Z gas, right? So again, the years taught him much which the days could never know. Had he surrendered himself with maybe 10 day, within 10 days or so, would you and me be sitting in this classroom enjoying this light? No. So collective wisdom of 10,000 iterations, years of practice, years of experimentation resulted into a final resultant that we are enjoying today, right? So this can be a perfect example. Can we move on to the next dimension? Can we move on to the next dimension? What can be the next dimension for this thing? Try to, can we move on to the social dimension? In short term, can we say that policies, डे, अगेन डे को कॉन्ट्रास्ट करेंगे हम ईयर से, तभी मजा आएगा. ठीक है, पॉलिसीज अपीयर टू बी chaotic. लॉन्ग टर्म में क्या होगा इन ईयर्स टू कम? फॉर एग्जाम्पल, इन शॉर्ट टर्म, Lincoln's fight against slavery, it would have appeared chaotic. In the short term, in days, events, ठीक है, Indian freedom struggle would have appeared chaotic. But in the long years to come, what are the outcomes? Indian freedom struggle, it can be American Revolution, ठीक है, it could be anti-slavery. समझ गए? तो शॉर्ट टर्म में क्या था? इट कुड हैव अपीयर्ड chaotic, बट लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्टेंट क्या निकला? ए बेटर वर्ल्ड. तो इससे हम कंक्लूसिवली क्या क्या प्रूव करेंगे कि
डेज में चीजें समझ में नहीं आती, डेज में प्रोसेसेस का लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो, वो समझ में नहीं आता। जो रिजल्टेंट होता है वो लॉन्ग टर्म में ही समझ में आती हैं हमें चीजें। समझ गए? कैन वी मूव ऑन एंड ओपन अप अनदर डायमेंशन? लेट अस टू ट्राई टू थिंक इट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स. Can we say that in short term, it appears that markets are volatile? Can we say this? In the short term, any kind of for example market, or for example any kind of innovation, it appears to have no value. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल जब ब्लॉकचेन स्टार्ट हुआ था, राइट, तो हम किसी को पता नहीं था कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल जब क्यू आर कोड का इनोवेशन हुआ था, तो नो बडी न्यू वॉट इट इज गोइंग टू हेल्प विद. बट ओवर द पीरियड जापानीज लोगों ने क्या किया, क्यू आर कोड से मशीन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया. एंड टुडे द ईयर्स नेवर नो दैट क्यू आर कोड वुड बी बिहाइंड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिजिटल रिवॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी, दैट इज यूपीआई. ठीक है? यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल टू फिलोसोफाइज ऑल्सो, टू थ्योराइज ऑल्सो, कि लॉन्ग टर्म में ही इम्पैक्ट पता चलता है चीजों का, डेज में पता नहीं चलता है. एंड यू कैन लिंक इट विद द सक्सेस स्टोरी ऑफ यूपीआई, बिकॉज अगेन ये गवर्नमेंट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट्स है दैट दे पर्सनली आर वेरी प्राउड ऑफ, and you as an Indian should also be proud of ki this is one of the most innovative ways of taking money out of your pockets, right? Again, can we move on and say, let us begin with political dimension? Various aspects of political dimensions can we open? In the short term, for example, elections को example लेते हैं, day, year. ये कांस्टेंट एक थीम रहेगी इस ऐसे में, ताकि कॉन्ट्रास्ट डेवलप हो पाए. डे अगेन इज ए मेटाफर, बट हम उसको यूज कर रहे हैं. डे मीन्स इंस्टेंटेनियसली. ठीक है? इंस्टेंटेनियसनेस रिफ्लेक्ट्स डेज एंड पेशेंस, ईयर इज ए रिफ्लेक्टिव ऑफ पेशेंस. ठीक है? इन शॉर्ट टर्म, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू पॉलिटिकल पार्टीज डू? पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शंस engage in populism. What else? They engage in daily controversies, noise and chaos. तो एग्जाम्पल दोनों तरीके से हो सकते हैं. ये क्या है ना, इसकी स्पिरिट न्यूट्रल है ऐसे की. यू कैन बोथ गिव पॉजिटिव एग्जाम्पल्स एज वेल एज नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑल्सो. पॉपुलिज्म, डिबेट्स एंड सोशल डिविजन, यू कैन से. उस समय पता नहीं चलता कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस आर फ्रैक्चर्स in the social setup. लॉन्ग टर्म इवेंट्स, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स का बाद नहीं पता चलता है. अब अगर एक नेगेटिव एग्जांपल दिया है तो एक पॉजिटिव एग्जांपल भी दे दो. यू कैन गिव एन पॉजिटिव एग्जांपल ऑफ लैंड रिफॉर्म. तो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी क्या थी उस समय? इनिशियली जब लैंड रिफॉर्म पॉलिसी को लेके आया गया, या फॉर एग्जांपल जीएसटी की पॉलिसी को लेके आया गया, तो देयर वाज ए लॉट ऑफ डिबेट, लॉट ऑफ केओस. ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू दीज पॉलिसीज की क्या होने वाला है, कैसे होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा. बट इन ईयर्स टू कम हमें पता चला, हमें रियलाइजेशन हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स का क्या फायदा हुआ. देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू लैंड रिफॉर्म्स जो कि हमें पता चले. सिमिलरली जीएसटी
रिवॉल्यूशन से क्या फायदे हुए, एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स एज वेल, राइट? तो उसको, ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, एक सिमिलरली पॉजिटिव एस्पेक्ट कर सकते हो. बोथ थिंग्स आर वैलिडेटिंग दैट what they are validating the title of the essay, that is the years teach much that the days never know. डेज में पता नहीं चलती कोई बात, ईयर्स में पता चलती है. ईयर्स टीचर्स. ठीक है. can we open another dimension? Do you have another dimension in mind? ग्लोबल लेवल पे देख के देखो इसको. यू थिंक अबाउट ग्लोबल लेवल. डेज, ईयर, वॉर, एस्पेक्ट ऑफ वॉर, ठीक है, और मिलिट्री wars or pandemics or any kind of crisis. What do the day teach? Day is again a metaphor. Day means that event. What does that event teach? Event teach that there is chaos. Event teaches us that peace is unstable. Perpetual peace बनानी हमें. और long term learning क्या होती है कि since war is a basic structure of human nature, तो हमें क्या करना है? सिविलाइजेशनल डायलॉग ओपन करना है, सो दैट देर आर नो वॉर्स. वॉर से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? सिविलाइजेशन विजडम डेवलप करनी है हमें, ऐसी स्पिरिट डेवलप करनी है कि कोऑपरेशन इज बेटर देन कॉन्फ्लिक्ट. So years teach us, years give us information that war is happening, pandemic is happening, ठीक है, various kind of conflicts are happening. But what do years teach us? That there must be some wisdom in it, that the cooperation is better than conflict, sustainability is better than exploitation, and mutualism is better than militarism. समझ गए बात को? ऐसे करके हम एक और डायमेंशन बना सकते हैं. आर देयर एनी काउंटर व्यूज, काउंटर पॉइंट्स? आर यू एबल टू फॉर्मुलेट एनी काउंटर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस? Sometimes it might so also happen that days teach much more than what years can. ठीक है, ईयर्स कुड नॉट टीच दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, बट एक फ्लड क्या कर देती है? वन फ्लड और वन फ्लैश फ्लड और वन क्लाउड बर्स्ट वो टीच कि नदी के आसपास घर नहीं बनाना है. वी डोंट हैव टू मेक ए घर, ए प्लेस, ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग जस्ट वेरी क्लोज टू द नेचुरल कोर्स ऑफ द रिवर. ठीक है. सर्वाइवर्स फॉर एग्जाम्पल, what years couldn't teach, one event taught, the nuclear bomb on Hiroshima. What years couldn't teach that yes, war is futile, war is futile. War was going on for many years. First there was World War One, then there was World War Two. Years couldn't teach that yes, you don't have to fight, but one atomic bomb on Hiroshima and again they got to know that no, there is futility in war, immediate cessation of conflict, immediate peace. ठीक है. एंड अगेन द, अगेन एक तो लर्निंग ये हो गई, और एक और लर्निंग, द सर्वाइवर्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्बिंग, दे क्रिएटेड ए काइंड ऑफ एंटी न्यूक्लियर वेपन मूवमेंट, जिसको अभी एक दो साल पहले न्यूक्लियर नॉट नोबेल पीस प्राइज मिला था. ठीक है, यू रिमेंबर व्हाट वाज द नेम? ठीक है, you google it and let me know what is the name of that NGO or that organization. और ऐसे हम देखो कितने ब्यूटीफुल तरीके से करंट अफेयर्स के ड्रॉपिंग्स. हाँ, निहोन हिंडाइको, यस राइट. ठीक है, तो अगेन यू राइट इट डाउन और यू सी हाउ ब्यूटीफुली वी हैव woven this particular essay to integrate current affairs as well. Very niche category of current affairs we have integrated in our write up, right?
तो कभी कभी क्या होता है, बॉटम लाइन इज कि कभी कभी अर्जेंसी दिखानी पड़ती है, कुछ कुछ मैटर्स में अर्जेंसी दिखानी पड़ती है। समझ गए बात को? और ऐसी करके बस कंक्लूड कर देंगे। अब लेट अस मूव ऑन एंड सी व्हाट कैन बी written in conclusion. So in conclusion we can obviously say that life is a dialogue between days, between moments and decades, between moment or between days and between years. Be attentive to immediacy of daily lessons. तो ऐसा नहीं करना है, लाइफ तो हर मोमेंट पे आपको कुछ ना कुछ लेसन टीच कर रही है, तो ऐसा नहीं करना है कि इमीडिएट लेसन्स को इग्नोर कर दिया कि बस हम तो डिपेंडेंट रहेंगे भाई लॉन्ग टर्म लेसन्स पे ही, और ऐसा भी नहीं करना है कि लॉन्ग टर्म लेसन्स नहीं सीखना है तो इमीडिएट की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो बी अटेंटिव टू इमीडिएसी ऑफ डेली रीजंस बट ऑल्सो बी पेशेंट फॉर लॉन्ग टर्म outcomes. Be ready to learn every day, but be patient for the long term outcome. तो इस पॉजिटिव नोट पे we can conclude our second essay, that is totally, ये कौन सा essay था, छठा essay था essay का, essay पेपर का, ठीक है। This was the sixth topic that we did in our series of lectures. Now let us move on to the seventh topic. This one was the, I think, the simplest one. It is best to see life as a journey. It has to be seen as a journey and not as a destination. Life is not to be seen as a final destination or as a journey, right? What, again, let us try to deconstruct the topic. What are the two keywords over here in this essay? First one being journey and second one being destination, that I have highlighted over here. So again, what is the nature? What is the nature of this essay? Is that it is again a metaphorical essay, a philosophical or an abstract essay. Journey क्या symbolize कर रही है यहाँ पे? First aspect is journey, और second one is destination. ठीक है, दो एस्पेक्ट हो गए. व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट डू वी मीन बाय जर्नी हियर? जर्नी से क्या समझ पा रहे हो? ठीक है, जर्नी से क्या समझ पा रहे हो? जर्नी इंडिकेट्स प्रोसेस, फ्लो. ठीक है, जर्नी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? इस काइंड ऑफ प्रोसेस फ्लो. व्हाट एल्स? मूवमेंट. इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स मूवमेंट और unfolding of history, just like Hegel said. ठीक है, not history but just unfolding of any event. जर्नी का ये implication है. What does destination indicate? Destination indicates end. Contentment. Cessation of desires. ठीक है, इसको ये इंडिकेट कर रहा है. कुछ इंट्रोडक्शन, व्हाट कैन बी ए गुड इंट्रोडक्शन? कोई अच्छा कोड बेस्ड, एनेक्डोटल, रिसेंट इवेंट से इंस्पायर्ड, सॉरी, कोई कोटेशन समझ में आता है तो यू प्लीज टेल मी. ठीक है, so I have this again a story that I teach in my class, that when Mahatma Gandhi was asked once by a reporter came to Mahatma Gandhi and he asked him that would it be possible that in your own lifetime you will be able to see India as an independent country. ठीक है, तो महात्मा गांधी ब्यूटिफुली रिप्लाइड दैट स्वराज इज ए प्रोसेस, ए जर्नी एंड नॉट ए डेस्टिनेशन. स्वराज कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि हमें मिल जाएगा, ये प्रोसेस है. तो हम प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं, डेस्टिनेशन पे अभी हमारा एज ऑफ नाउ फोकस नहीं है. ठीक है, सेम हम जब फिलॉसफी में या एथिक्स के पेपर में भी पढ़ते हैं कि देर आर टू काइंड ऑफ फिलोसफीज, पहली डिओन्टोलॉजी एंड अदर वन इज टीलियोलॉजी.
डियोंटोलॉजी फोकसेस ऑन व्हाट एंड व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ टीलियोलॉजी, ठीक है, उसी के ऊपर ये ऐसे काइंड ऑफ बेस्ड है. So what let us discuss the why first. Why is it so that it is best to see life as a journey and not as a destination? Because why? Because life is impermanent. Life is impermanent. इंसान क्या करता है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, मैच्योर कर रहा है, ठीक है, खुद को सेल्फ क्वेश्चन कर रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो कंटिन्यूस ग्रोथ के मोड में है, राइट. व्हाट एल्स? Life is to be seen as a journey and not as a destination, because focusing too much on destination leads to destination obsession. इस चीज को हमें अवॉइड करना है. और when we see life as an end, sometimes it might so happen that हमारा मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा. तो अगर हम बहुत ज्यादा एंड ऑब्सेस्ड होंगे तो हमारा मोटिवेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. बिकॉज मोटिवेशन कैसे बनता है, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम स्मॉल विक्ट्रीज. जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज अपना डे स्टार्ट किया, तो one goal is there that for example you are preparing for UPSC and one day you would like to see your name in the holy PDF, okay, बट वो दिन तो दूर है, टाइम लगेगा उसमें आने में. तो हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा पीस मील, थोड़ा सा रेगुलर लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए, ठीक है. अब उसको अटेन करने का क्या तरीका है कि भाई मैंने आज 2 चैप्टर पढ़ लिए और 3 आंसर लिख लिए, राइट. तो इस तरीके से क्या होता है, डेली मोटिवेशन मिलता रहता है. प्रिपरेशन इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, ठीक है. सिविल सर्विसेज अगेन एग्जाम इज ए जर्नी, इट इज टू बी बेटर सीन एज ए जर्नी not as a destination in itself. Can we open it in terms of various dimensions like history, um, social dimensions, right? Let us try to open. So let us take the example from history, ठीक है. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से एग्जाम्पल लेते हैं. Let's try to take example history open कर रहे हैं यहाँ पे. Let's take the example of Indian freedom struggle, ठीक है. तो the best way to see it as a journey and not as a destination. What is the journey aspect? The strategy of non-violence, strategy of satyagrah, strategy of struggle, true struggle. All these shaped what? इन सब ने क्या शेप किया, कलेक्टिवली मिलके इन सब ने शेप किया हमारा फ्रीडम स्ट्रगल. अगर हम, एक आर्ग्यूमेंट है कि अगर हम बहुत ज्यादा फोकस करते किस चीज पे, कि वॉयलेंट वे ऑफ फ्रीडम अटेन करना है, फ्रीडम वी हैव टू अटेन थ्रू वॉयलेंट मींस, तो क्या हो सकता था, व्हाट कुड हैव बीन द लाइकेबिलिटी दैट just like the various post colonial nations which attained freedom along with India, for example like Pakistan. तो ये एक चांस था, एक लाइकेबिलिटी थी, एक प्रोबेबिलिटी थी कि हमारी फ्रीडम वुड हैव बीन शॉर्ट लिव्ड. Since we did not focus, we were not obsessed about getting freedom, we were focused about the journey, the means rather than the ends. इसीलिए हमारी फ्रीडम इज लॉन्ग लिव्ड, ठीक है. आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग. तो ये तभी मना पा रहे हैं क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम राइट था, हमने फोकस किया प्रोसेस पे रादर देन बीइंग ऑब्सेस्ड अबाउट द डेस्टिनेशन, ठीक है. डेस्टिनेशन इन्फैचुएशन नहीं किया हमने प्रोसेस इन्फैचुएशन रखा अपना.
right? Ab, let us try to this would be sufficient to open up a historical dimension, right? Similarly, we can say that uh, we can take the example of various world wars also, ठीक है? तो treating, जब हम पीस को एज ए जर्नी की तरह ट्रीट करेंगे तो हम उसके लिए कॉन्स्टेंटली अवेयर रहेंगे, राइट? जब हम पीस को एज ए डेस्टिनेशन देखने लग जाएंगे तो हम कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे। तो पीस को हमें एज ए वेरी फ्रेजाइल थिंग देखना है कि पीस इज ए फ्रेजाइल थिंग। तो हम हर दिन एफर्ट करेंगे इन इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल्सो, इन द वर्ल्ड अफेयर्स ऑल्सो, कि पीस को हम फ्रेजाइल तरीके से देखेंगे तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इट हैज टू बी अपहेल्ड विद वेरी मच केयर एंड अटेंशन हैज टू बी गिवन टू मेंटेन पीस। नहीं तो होगा क्या? अगेन वर्ल्ड विल डिसर्न इनटू केओस, ठीक है? ऐसा हो जाएगा। लेट अस ट्राई टू ओपन सोशियो एथिकल डायमेंशंस, कैन वी फाइंड and explore? So again the ethics paper is also upon us. Socio ethical dimensions will go for means versus ends debate. समझ गए बात को? What does journey reflect in the means versus ends debate? What does the journey indicate? Journey indicates integrity. Journey ensures integrity, due process, ठीक है, procedural fairness, rather than getting means through। अगर मीन्स का ऑब्सेशन हो, एंड्स का ऑब्सेशन होगा, तो वी वुड बी ऑब्सेस्ड अबाउट गेटिंग क्विक फिक्सेस, गेटिंग क्विक एंड्स, ठीक है? तो इट वुड बी लीडिंग टू अनएथिकल प्रैक्टिस। और अगेन these things would be short lived, these things are going to be short lived, they will be limited in the hands of few, और कहीं ना कहीं फिर क्या होगा? रिवॉल्यूशंस होंगे, राइट? Can we open another dimension with respect to, let us say, some great thinkers, some great philosophers, some great personalities, right? For example, take an example of a writer. अब देखो, एक कंसेप्ट होता है द जॉय ऑफ राइटिंग। अगर कोई राइटर या एक सॉन्ग राइटर या एक सिंगर ऑब्सेस्ड है कि मुझे बहुत अच्छा एक ऐसा गाना चलाना है जो बहुत हिट हो जाए, या ऐसी किताब बनानी है जो कि हिट हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एंड से ऑब्सेस्ड होंगे ना, उतना ही ज़्यादा फर्दर आप, एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा हम ऑब्सेस्ड हो जाएंगे और वी विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द ड्यू प्रोसेस, ठीक है? सो आर्ट, कल्चर, ये चीजें सिर्फ एंड गोल पे फोकस नहीं हो सकती, द प्रोसेस हैज टू बी एंजॉयड, ठीक है? तो इसमें हम एग्जांपल देंगे कि जब जेके रोलिंग किताब लिख रही थी अपनी हैरी पॉटर सीरीज, तो शी गॉट रिजेक्टेड बाय 12 ऑफ द पब्लिशर्स, ठीक है? अब हर प्रोसेस के बाद में, आफ्टर एवरी रिजेक्शन और सो, इफ शी वुड हैव गिवन अप, इफ शी वुड हैव सेड कि नहीं, एंड में एंड गोल, मुझे मुझे जर्नी पे फोकस नहीं करना है, द जॉयज ऑफ राइटिंग पे फोकस नहीं करना है, आई जस्ट वांट टू सेल इट टू एनीवन, मतलब एनीवन और एवरीवन, ठीक है? तो क्या होता? एक मास्टरपीस नहीं क्रिएट हो पाता। समझ गए आप बात को? तो अगेन हम एक एग्जांपल ले सकते हैं और एग्जांपल के थ्रू, जेके रोलिंग के एग्जांपल के थ्रू हम इसको फर्दर एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है? उसने, जर्नी ने उसको क्या सिखाया? व्हाट डिड द जर्नी टीच हर? जर्नी, और फॉर एग्जांपल रिजेक्शन, रिजेक्शन ने उसको क्या सिखाया? टू बी रेजिलियंट। तो वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है उससे, प्रोसेस की तरह देखने से वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है, वैल्यू ऑफ, फॉर एग्जांपल, रेजिलियंस फॉर हर। Let us take it to the level of economy, try to connect it with the economy, right?
इकोनॉमी से कनेक्ट करते हैं, तो इकोनॉमी से कनेक्ट करेंगे तो फिलोसफी ऑफ काइजन, के काइजन का नाम सुना है आपने? दिस इज ए जापानीज फिलोसफी ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो वो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट फिलोसफी देयर इज नो फाइनल इन्वेंशन, ठीक है, बट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स। कोई फाइनल इन्वेंशन नहीं होता है, सारे के सारे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होते हैं। एवरी डिस्कवरी लीड्स टू अनदर फ्रंटियर। हर डिस्कवरी, साइंटिफिक टेम्पर का एक फंडामेंटल नेचर है कि हर डिस्कवरी क्या होगी, एक फाइनल, एक नया फ्रंटियर ब्रीच करेगी। तो वी कैन लिंक इट विद द डायमेंशन ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट भी ऐसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। और सिमिलरली यू कैन लिंक इट विद द डायमेंशन ऑफ साइंस एंड टेक ऑल्सो, इन विच यू कैन से दैट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ओवर द बल्ब। बल्ब को हमने कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते 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 क्या हम पहुंच गए, एलईडी तक पहुंच गए, ठीक है। तो वहीं पे स्टॉप हो जाते, उसी को एंड मान लेते कि दिस बल्ब इज द एंड। 10,000 इटरेशंस का जो एंड रिजल्ट है वो बल्ब है, अब उससे आगे कुछ नहीं है। तो आज हम एलईडीज देख पा रहे होते क्या, या ऑर्गेनिक एलईडीज, अब तो और भी नए नए इन्वेंशन आ गए हैं, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें किस कंटेक्स्ट में देखनी है कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो चाहे इनोवेशन हो, वो सब क्या है, एक कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है, एक काइजन है, फिलोसफी ऑफ काइजन है। इट हैज टू बी सीन एज ए जर्नी, यस ऑनगोइंग है, चीजें आगे और फर्दर इंप्रूव हो रही हैं और फर्दर इंप्रूव होंगी, राइट। ऐसे करके वी कैन ओपन ए इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, सो राइट। कुछ इसका काउंटर व्यू बना सकते हैं क्या, कैन वी क्रिएट ए काइंड ऑफ काउंटर व्यू, काउंटर प्रपोजल? अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली क्या है कि काउंटर प्रपोजल जरूरी नहीं है हर जगह दो। अगर अपने नैरेटिव में, अपने एजेंडा में फिट हो रही है बात, तो काउंटर प्रपोजल देना है। और अगर ऐसा लग रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसको देने की, तो नहीं भी देना है। कोई देने का एकदम मैंडेट नहीं है कि नहीं दिया तो नंबर ही नहीं मिलेंगे या काम नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो अपने एजेंडा में, अपने मैंडेट में फिट बैठता है, अपने राइट अप में वो ऑर्गेनिकली इंटीग्रेट हो रहा है, तो देंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे। कैन दिस बी, कैन देयर बी ए काउंटर व्यू दैट विदाउट डेस्टिनेशन हमारी जर्नी जो होगी ना वो एंडलेस हो जाएगी। विदाउट ए डेस्टिनेशन, विदाउट ए गोल पोस्ट, भाई फुटबॉल खेल रहे हो आप पर गोल पोस्ट है ही नहीं, तो गोल कहाँ मारोगे? कैसे डिसाइड होगा कि हु वॉन एंड हु लॉस्ट? देयर मस्ट बी सम क्लोजर ना, अपने मतलब प्रिपरेशन का देयर मस्ट बी सम क्लोजर। एवरी एक्टिविटी हमेशा हम क्या करते हैं, मैन इज ए क्लोजर सीकिंग एनिमल। पास्ट को तो एंजॉय कर ही रहा है इंसान, बट साथ में क्या चाहता है वो, कि डेस्टिनेशन भी कुछ फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो डेस्टिनेशन को भी इंसान देखना चाहता है कि भाई हम कहाँ पहुंचेंगे इस पाथ को लेके। तो एक नेचुरल, एक कंपस होता है हर इंसान के अंदर जो कि डायरेक्ट करता है कि दिस इज माई गोल पोस्ट, दिस इज माई गोल एंड दिस इज वॉट आई हैव टू अचीव। एक एस्पिरेशन होती है, एक गोल होता है इंसान का, ठीक है। तो वो चीज है कि अगर हम प्योरली, जैसे कि जस्ट लाइक डेस्टिनेशन ऑब्सेशन नहीं रखना है, वैसे के वैसे प्रोसेस ऑब्सेशन भी नहीं रखना है। नो, बोथ ऑफ देम आर इन देयर एब्सोल्यूट सेंस आर गोइंग टू बी रॉन्ग। तो ये हम ऐसे करके कंक्लूड कर सकते हैं कि जस्ट लाइक वी मेंशनड इन द बॉडी, जस्ट लाइक वी मेंशनड ओवर देयर, दैट डेस्टिनेशन ऑब्सेशन कैन बी वेरी डेडली, बिकॉज प्रोसेस पे फोकस नहीं रहेगा कि कैसे भी साम दान दंड भेद कैसे भी करके मुझे कोई चीज पानी है, तो अनएथिकल मीन्स भी चाहे क्यों ना हो कोई बात नहीं। तो ये डेस्टिनेशन ऑब्सेशन है, ये नहीं रखना, ऑब्वियसली हमने डिसाइड कर लिया। बट सिमिलरली प्रोसेस ऑब्सेशन भी, टू मच प्रोसेस ऑब्सेशन से क्या फैलेसीज हैं, क्या नेगेटिविटीज हैं इसके अंदर, कि भाई हो सकता है हम अपना एक गोल पोस्ट ही भूल जाएं। तो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टू डू दैट टुडे।
अब ये एक टाइम बाउंड सोसाइटी की तरफ हम चले गए कि भाई टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट, टाइम इज द न्यू करेंसी, अटेंशन इज द न्यू करेंसी, राइट। तो ये इंश्योर करना है कि एक ड्यू प्रोसेस तो फॉलो हो रही है, जस्ट लाइक गांधी जी यूज्ड टू से कि गोल्डन मीन अचीव करना है, गुड पाथ लीड्स टू गुड डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन भी इंश्योर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस लड़ रहे हैं तो आज़ादी चाहिए ही नहीं, ऐसे ही लड़े जा रहे हैं बस। एक गोल पोस्ट तो एक कुछ तो दिमाग में होगा गांधी जी के भी कि एक दिन तो आज़ादी तो दिलानी है। वो तो उन्होंने उसी दिन सोच लिया था जिस दिन उनको ट्रेन से निकाला गया था। समझ गए बात को? तो जैसे एरिस्टोटल बोलते हैं कि टीलोस का एक कंसेप्ट है एथिक्स में या फिलॉसफी में, तो वो एरिस्टोटल ओवर देयर सेज दैट ओक ट्री इज द डेस्टिनेशन ऑफ अकॉर्न, नॉट द जर्नी ऑफ ग्रोइंग। सो एक अकॉर्न मीन्स एक सीड का जो पर्पस है, एंड गोल है लाइफ का, इट इज टू, फॉर ए सीड द एंड गोल इज टू ग्रो इट इनटू ए ओक ट्री। एक बड़ा सा, एक दिन एक बीज को, उसका एंड गोल क्या है, एक बड़ा सा पेड़ बन जाना है, और जर्नी ऑफ ग्रोइंग इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। और ये टीलोस वाली फिलॉसफी से ही टीलियोलॉजी आया है, विच मीन्स के एंड्स आर इम्पॉर्टेंट देन द प्रोसेस इन्वॉल्व, राइट। और हम ये भी कह सकते हैं कि आज हम मतलब किसी भी ग्रेट लीडर की हम कोई बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण ये कि वो कुछ ग्रेट प्रोडक्टिव आउटकम या कुछ एक लिगेसी छोड़ के गया है। तो लिगेसी क्या है? वो उसका एंड है, उसकी फिलॉसफी का, उसकी प्रोसेस का एंड है कि भाई ये चीज यहाँ पे आके एंड हो गई उसकी फिलॉसफी, ठीक है। तो इसलिए एक सेंस ऑफ क्लोजर, ए सेंस ऑफ एंड जरूरी है लाइफ में होता है। समझ गए? विद दिस वी कंक्लूड टॉपिक नंबर 7. Let us move on to the last topic. Small is beautiful. ठीक है, कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ। पहला कीवर्ड क्या आ गया? कंटेंटमेंट। दूसरा क्या आ गया? लिंकेज। व्हाट इज कंटेंटमेंट? इज नेचुरल वेल्थ। एंड लग्जरी, व्हाट इज लग्जरी? थर्ड कीवर्ड आ गया लग्जरी। लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। ठीक है, तो इवन दो having contentment, what is contentment? Is creation of or having a natural wealth. And despite having so much money, despite having luxury, uh, luxury creates what? Artificial poverty. ठीक है, तो अब यहाँ पे लिंक करें कंटेंटमेंट को, ओपन करते सबसे पहले व्हाट डज कंटेंटमेंट सिग्निफाई। कंटेंटमेंट वर्ड को तोड़ो, ट्राई करो टू ब्रेक डाउन कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मीनिंग इनर सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं हम। कैन वी से दैट कंटेंटमेंट मीन्स पीस ऑफ माइंड? ठीक है, तो कंटेंटमेंट मीन्स इनर सेटिस्फैक्शन, इट मीन्स पीस ऑफ माइंड, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल सेल्फ सफिशियंसी। सिमिलरली अब देखो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, बट आर्टिफिशियल पॉवर्टी, ठीक है, लग्जरी, लग्जरी कैन नॉट आइडियली क्रिएट पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी और लग्जरी दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं, बट कहीं ना कहीं ऑथर ने इसको लिंक किया है कि लग्जरी जो है हो सकता है मटेरियल पॉवर्टी ना क्रिएट कर रहा हो, बट इट क्रिएट्स ए काइंड ऑफ आर्टिफिशियल पॉवर्टी, विच मीन्स पॉवर्टी ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज की पॉवर्टी क्रिएट कर देता है। यह स्टेटमेंट किसका है? इफ अगर कोई बच्चा थोड़ा सा पढ़ के जाएगा, करके जाएगा, तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट पता रहेगा उसको, सोक्रेटिस का है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में भी पहले पूछा है, इसके ऊपर ऐसे टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया था ऑन सिमिलर लाइंस। ठीक है, लेट अस, हमने अब दोनों कीवर्ड खोल लिए, अब लेट अस ट्राई टू राइट एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये दो फोटो लगाए, इसके पीछे क्या इंटेंशन था कि फर्स्ट, इफ एट ऑल अगर कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखना है तो दिस वुड हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट appropriate quote over here. I don't know if you are able to see this or not, but J.R.R. Tolkien का नाम सुना है आप लोगों ने?
होपफुली सुना होगा, ठीक है। तो व्हाट ही सेड वाज दैट इफ मोर ऑफ अस वैल्यूड फूड एंड cheer and song above the hoarded gold, if more of us valued food, valued food means being thankful that we have food on our plate, and then cheer means being happy and joyful, right? And song means singing songs, like for example gelling up with people, living with community, being happy above hoarded goals. तो इंसान को ने अगर खाना इज अगेन ए मेटाफर दैट बेसिक नेसेसिटीज को, एंटरटेनमेंट को, एंड सॉन्ग इज अगेन ए मेटाफर ऑफ लिविंग कलेक्टिवली। इन चीजों को फोकस किया होता ओवर होर्डेड गोल्ड, कलेक्टेड गोल्ड। होर्डिंग गोल्ड मीन्स ग्रीड का मेटाफर है वो होर्डेड गोल्ड। द वर्ल्ड वुड बी ए बेटर प्लेस, वी वुड बी लिविंग इन ए मैरियर वर्ल्ड। सिमिलरली ये जो फोटो लगाया है, दिस इज अगेन we can give an example or anecdote of अपतानी ट्राइब। आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा नाम, ठीक है। अपतानी ट्राइब इज ए ट्राइब दैट लिव्स इन जीरो वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, राइस का, विदाउट एनी काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। वो राइस का कल्टीवेशन करते हैं और राइस और फिश का साथ में कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। अब ये अगेन क्या दिखा रहा है कि उनके जो कम्युनिटी बॉन्ड है ना अपतानी ट्राइब के, वो बहुत स्ट्रांग है डिस्पाइट नॉट हैविंग आर्टिफिशियल वेल्थ। हम लोग के पास क्या है, अर्बन सिटीज में मे बी परहैप्स वी आर हैविंग सम आर्टिफिशियल वेल्थ, बट उनकी रियल वेल्थ क्या है, उनकी रियल वेल्थ है कम्युनिटी बॉन्ड्स, कम्युनिटी रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी बॉन्ड और कम्युनिटी रिलेशनशिप्स। समझ गए? इस लाइन को या इस एनेक्डोट को यूज करके एक थोड़ा सा पोएटिक वे में लिख देते तो एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाता। नाउ मूव ऑन एंड सी, let us try to open various dimensions, let us try and develop various dimensions for the body, ठीक है। बॉडी के लिए डायमेंशंस डेवलप करो। फर्स्ट ऑन साइकोलॉजिकल लेवल या इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या समझ में आ रहा है, अगेन कॉन्ट्रास्ट करो, कॉन्ट्रास्ट विद व्हाट वाज द टाइटल, कंटेंटमेंट एंड लग्जरी। दोनों चीजों को कॉन्ट्रास्ट करो, एक तरफ लिखो कंटेंटमेंट और एक तरफ लिखो लग्जरी। कंटेंटमेंट क्या लाएगा इंडिविजुअल लेवल पे, कंटेंटमेंट लाएगा, कंटेंटमेंट लाएगा मेंटल स्टेबिलिटी, कंटेंटमेंट लाएगा जॉय एंड रेसिलियंस। whereas luxury comes with its own restlessness। इसी थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए we can take an example of Martin Seligman. He is a very famous American philosopher, psychologist and an educator also. So what he says is that as per his researches, he says that happiness correlates with positive psychology. It correlates more with gratitude and purpose than with material wealth. तो material wealth से happiness नहीं आती, material wealth is a reason for restlessness, ठीक है। और happiness का जो कोरिलेशन है वो किस चीज से ज्यादा है, ग्रैटिट्यूड और पर्पस ऑफ लाइफ से या फिर कंटेंटमेंट से ज्यादा है एज कंपेयर टू लग्जरी। तो सिमिलर नोट पे हम क्या ये भी कह सकते हैं कि बुद्धा की जो फिलॉसफी थी ऑफ मिडिल पाथ,
ठीक है, तो व्हाट डिड ही से इन दैट फिलोसफी ऑफ मिडिल पाथ कि द बेस्ट वे टू एंड सफरिंग, सफरिंग कब एंड होंगी? जब डिजायर्स एंड हो जाएंगी या फिर कंटेंटमेंट आ जाएगा। कंटेंटमेंट वुड लीड टू एंड ऑफ सफरिंग या अनिक्का, राइट। और लग्जरी क्या बनाएगी? लग्जरी क्या बनाएगी इंसान को? लग्जरी विल क्रिएट बॉन्डेजेस, ठीक है। दिस लग्जरी विल ओनली लीड टू व्हाट? हैविंग वर्ल्डली बॉन्डेजेस फॉर यू। समझ गए बात को? ये लिख देंगे। फिर अगेन कम टू द फिलोसफिकल डायमेंशन। कुछ फिलोसफिकल डायमेंशन जनरेट कर सकते हो क्या? ये क्या थी? ये वाली कौन सी डायमेंशन थी? साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल डायमेंशन कर ली। सिमिलरली क्योंकि नेचर क्या है भाई? फादर ऑफ, मे बी परहैप्स फादर ऑफ फिलोसफी सोक्रेटिस का भी स्टेटमेंट है, तो एक एक वो ड्यूटी बनती है हमारी कि थोड़ा सा फिलोसफिकल डायमेंशन में इस चीज के ऊपर ड्वेल करें। सोक्रेटिस की थ्योरी डायरेक्टली कोट करो। व्हाट डिड ही से? दैट ही इज द रिचेस्ट हु इज कंटेंट। ही इज द रिचेस्ट हु इज कंटेंट। जो कंटेंट है वही अमीर है। विद द लीस्ट, ठीक है। स्टोइक्स क्या बोलते हैं? विद द लीस्ट, जो कम में सेटिस्फाइड है वो ही रिचेस्ट है। स्टोइक्स क्या कहते हैं? स्टोइक विजडम बोलती है कि लग्जरी इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज इट करप्ट्स कैरेक्टर। समझ गए बात को कि लग्जरी से क्या होता है? कैरेक्टर करप्ट होता है। गांधीयन ट्रस्टीशिप क्या है? फिलॉसफी में एक और गांधीयन ट्रस्टीशिप डाल दो। ट्रस्टीशिप इज व्हाट? ए फिलॉसफी ऑफ अटेनिंग लग्जरी। लग्जरी अटेन करने की फिलॉसफी है क्या ट्रस्टीशिप? नो, इट इज ए फिलॉसफी ऑफ लिविंग विद इन मीन्स, ठीक है। एंड जो भी एडिशनल रिसोर्सेज हैं वो क्या बोलते थे कि कंपनी और कॉरपोरेशन डज नॉट बिलोंग टू द कैपिटलिस्ट। Capitalist is a mere trustee of that property. The property actually belongs to the society or the community. समझ गए बात को? तो ट्रस्टीशिप की फिलॉसफी यही है, क्या बोलती है कि जो कम में संतुष्ट है वही खुश है, राइट। मूव ऑन, लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर वन मोर डायमेंशन। अगला डायमेंशन क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो? सोशल डायमेंशन एक्सप्लोर करो। Let us try to explore social dimension with respect to this topic. सोशल डायमेंशन एक्सप्लोर करो। सोसाइटी में क्या करता है? कंटेंटमेंट क्या करेगा? हार्मनी को फॉस्टर करेगा। इट विल फॉस्टर हार्मनी। और लग्जरी क्या करेगी? लग्जरी डिविजन्स क्रिएट करेगी। लग्जरी क्या करेगी? लग्जरी विल क्रिएट डिविजन्स, ठीक है, फ्रैक्चर्स इन सोसाइटी। एग्जाम्पल दे दो। कहां से एग्जाम्पल दोगे? You can give examples from social revolutions also. You can give examples of division in societies in urban. अर्बन लोग ज्यादा खुश होते हैं या रूरल लोग ज्यादा खुश हैं? रूरल लोगों के कम्युनिटी बॉन्ड्स क्या हैं? बिकॉज ऑफ शेयरिंग ये ज्यादा कंसोलिडेटेड बॉन्ड्स हैं एज कंपेयर टू अर्बन लोग, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा? अर्बन
लोगों में हैप्पीनेस कम है, जो लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं ना, उन लोगों में हैप्पीनेस कम है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। रूरल लोग ज़्यादा कंटेंट हैं, ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, कम में खुश हैं, इसलिए वो हैप्पी हैं। लेट अस मूव ऑन टू अगेन ट्राई टू मूव ऑन टू इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या कैसे लिंक करोगे उसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक कर सकते हो। समझ गए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक कर सकते हो। और क्या सोशल इश्यूज हैं, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू लग्जरी? एक तो पॉजिटिव लिखेंगे हम सस्टेनेबिलिटी का या कंटेनमेंट का, और नेगेटिव इश्यूज लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू लग्जरी। लग्जरी ने क्या क्रिएट किया है? इविल्स ऑफ कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर कल्चर। ठीक है, कंज्यूमर कल्चर डेवलप किया है, प्लांट ऑब्सिलेंस डेवलप की है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या है ये? लग्जरी का एक मैनिफेस्टेशन है कि जैसे ही नया आईफोन का मॉडल आया, इंडिया में क्या लग जा रही है? लाइनें लग जा रही हैं आईफोन के स्टोर्स के बाहर कि भाई मुझे अब नया आईफोन आ गया है। तो मामला ये है कि 16 आ गया तो 16 चाहिए, 17 आ गया तो 17 चाहिए। अब 16 अभी लिया था 3 महीने पहले, बट अब 17 आ गया है तो आईफोन 17 तो चाहिए। तो वो बंदा कभी हैप्पी रहेगा क्या कि जिसकी हैप्पीनेस कंटिंजेंट है अपने नए आईफोन पे? ठीक है, जिस बंदे की हैप्पीनेस इंट्रिंसिक फैक्टर्स पे ना कंटेंट है, डिपेंडेंट है, जो अंदर से हैप्पीनेस डिराइव कर रहा है, वो बंदा हैप्पी रहेगा। और जिस बंदे की हैप्पीनेस कंटिंजेंट है कि भाई नया आईफोन का मॉडल आ गया है और अब ये नया मॉडल मेरे पास क्यों नहीं है, कि मेरे दोस्त ने तो ले लिया, मेरे फ्रेंड ने ले लिया, मेरे सर्कल में एक दो लोगों ने ले लिया, मुझे सबसे पहले लेना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ऑब्सेस्ड लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं और वो न्यूयॉर्क चले जाते हैं या दुबई चले जाते हैं कि दुबई में पहले, मतलब आई हैव गॉट ए फ्रेंड, वो दुबई चला गया था, वहां पे पहले लॉन्च हुआ था ना, वहां से लेके आ गया। क्या रीजन था? सिर्फ कि इंडिया में किसी के पास नहीं है ये चीज। अभी इंडिया में मे बी थोड़ा सा लेट हो गया होगा लॉन्च होने में, 1-2 दिन या जो भी है, तो ग्लोबल लॉन्च होता है वैसे। बट अगेन यू गेट द आइडिया कि उसकी हैप्पीनेस किस चीज पे कंटिजेंट है, कि उसको अपने सर्कल में दिखाना है कि मैं सबसे पहले आईफोन ये वाला मॉडल सबसे पहले पूरे, मतलब मेरे सर्कल में मेरे पास आया है। तो वो बंदा एक्चुअली इंटेलेक्चुअली बहुत पुअर है। ठीक है, उसका मटेरियल डिजायर्स के ऊपर जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का पिरामिड होता है ना, हायरार्की ऑफ नीड्स या उसका पिरामिड होता है ना, वो उसका अभी वो मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल हायरार्की में बहुत नीचे रह गया है। वो उसकी हैप्पीनेस क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कंटिजेंट है, तो वो आर्टिफिशियल पुअर है। आर्टिफिशियल पुअर एज इन इंटेलेक्चुअली ही इज ए वेरी पुअर पर्सन। मतलब हम लोग हंसते ही थे उसके ऊपर ऑब्वियसली, राइट? ऐसे लोग भी होते हैं। देन अगेन यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, यू कैन गिव एग्जाम्पल फ्रॉम भूटान। भूटान किस पे फोकस करता है? जीडीपी पे फोकस नहीं करता है भूटान, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे फोकस करता है। कंटेंट है बहुत ज्यादा, इकोनॉमी इकोनॉमी का ज्यादा ध्यान नहीं देते वो, लोगों का बेसिक डेवलपमेंट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, गुड लर्निंग, गुड एजुकेशन, मॉरल लर्निंग, इन सब चीजों पे ध्यान देके वो लोग खुश है। उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जीडीपी हम लोग तो देखो ना, अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज दैट हम लोग आयरॉनिकली वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हैं, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट अनइक्वल नेशन भी हम ही लोग हैं। समझ गए बात को? तो यही सब कॉन्ट्राडिक्शन है इंडिया के। एक पॉलिटिकल डायमेंशन देख लेते हैं। पॉलिटिकल, यू ट्राई टू जनरेट इकोनॉमिक डायमेंशन। अगेन ये डायमेंशंस मैं आगे पीछे ले लेता हूँ सो दैट यू गेट टू नो, यू गेट टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या क्या कैसे कैसे किया जा सकता है। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में बहुत ज्यादा लूंगा ना तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। ऐसे क्लासेस आर जनरली वेरी पर्सनल इन नेचर। ऐसे इज लाइक ए, वो एक बहुत ही इंटीमेट और पर्सनल राइट अप होता है, हर किसी का अलग अलग होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट
किसी का एकेडमिक बैकग्राउंड अलग है, उसके लिए अलग होगा, किसी की लर्निंग्स लाइफ में अलग है, उसके लिए अलग होगा, किसी का ऑप्शनल अलग है। बहुत सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं, तो बहुत डिफरेंट वेराइटी ऑफ राइट अप्स आर एनकरेज्ड ओवर हियर इन एसए, ठीक है, समझ गए। तो ये मैं थोड़ा सा चेंज करता रहता हूँ, सो दैट हर बच्चा अपना अपना व्यू इनकॉर्पोरेट कर पाए और एक डाइवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट मिल पाए हमें। ये बहुत इंश्योर करना बहुत जरूरी है वाइल टीचिंग एसेज, राइट। पॉलिटिकल डायमेंशन, इसीलिए चलो लेट अस ट्राई एक्सप्लोर करो। रोम, रोम का डिक्लाइन क्यों हुआ? रोम वॉज वंस मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑन अर्थ। क्यों डिक्लाइन हुआ रोम का? क्योंकि लोग करप्ट हो गए थे, करप्शन के कारण हुआ। करप्शन क्यों हुआ? वैल्यू सिस्टम करप्ट हुआ या लग्जरी? लग्जरी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए वो लोग, ठीक है। तो इट डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ डेकेडेंस, इट डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ लग्जरी, टू मच फोकस ऑन लग्जरी। मुगल्स का डिक्लाइन इंडिया में क्यों हुआ? वन ऑफ द थ्योरीज इज, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिबेट कि भाई यही हुआ। यहाँ पे तो क्या है, हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, देयर माइट बी सम अदर रीजंस आल्सो, बट वन आई एम जस्ट सेइंग दैट वन ऑफ द रीजंस ऑफ डिक्लाइंस ऑफ मुगल्स वाज कि जो लास्ट के जो लेटर मुगल्स थे ना, दे वर इंडल्जिंग इन टू मच लग्जरी। उनको अपने फ्रंटियर प्रोटेक्ट करने पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं था, ठीक है, रंगीला बन गए थे वो लोग, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ताता थैया करना, लग्जरी करना, ये सब चीजें क्या होती हैं, मॉरल करप्शन, मॉरल परवर्जन, करोजन कर देती हैं, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, एम्पायर्स फेल हो जाते हैं। अरब स्प्रिंग क्यों हुआ? अरब स्प्रिंग के पीछे क्या था रीजन? अरब स्प्रिंग भी अगेन इसीलिए हुआ कि वहां पे जो लग्जरी थी, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड लग्जरी थी, तो बाकी के लोग क्या कर गए, रिवॉल्ट कर गए। जब मैरी एंटोनेट ने कहा कि इफ यू डोंट हैव ब्रेड गो एंड ईट केक, तो क्या हो गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था। इक्वालिटी की बात है, डिग्निटी की बात है, समझ गए बात को, यही सब बातें हैं। और कोई डायमेंशन जनरेट कर सकते हो? आर्टिफिशियल पॉवर्टी क्यों है ग्लोबल साउथ में? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आर्टिफिशियल पॉवर्टी इन ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ के लिए कहा जाता है कि नॉर्थ में तो जैसे जनरली ऐसी कोई स्टार्क पॉवर्टी है ही नहीं, बट देर इज दिस थ्योरी विच सेज दैट इवन इन साउथ द पॉवर्टी इज आर्टिफिशियल, इट इज नॉट नेचुरल पॉवर्टी। क्यों? क्योंकि साउथ इज मोर एंडाउड विद रिसोर्सेज देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ग्लोबल साउथ में अफ्रीका भी आ जाता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हीरे सोने की खान है, ठीक है। इंडिया इज एंडाउड विद इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज, बट स्टिल हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी है ना, वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल पॉवर्टी के पीछे मीनिंग ये है कि हमारी जो सोसाइटीज हैं, जो अपर इकलन्स ऑफ द सोसाइटीज हैं, वो सेल्फ कंटेंट नहीं है, वो बहुत ग्रीडी है। सिमिलरली इन अफ्रीका जो पावर स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी जनरली है ही नहीं, डेमोक्रेसी इज नॉट पार्ट ऑफ सिविक कल्चर। तो होता क्या है कि ऐसे लीडर्स आते हैं जो पावर के लिए हंग्री हैं, पावर को कैप्चर करना चाहते हैं, और सिमिलरली पावर के साथ में क्या ऑब्जेक्टिव है अगला, कि अपनी लग्जरीज पे ध्यान देना चाहते हैं, चाहे वो डिक्टेटर अमीन हो या जो भी हो, ठीक है, समझ गए। तो ये इसीलिए क्या हो गया इंडिया में, इंडिया नहीं, नॉट जस्ट इंडिया, ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं हम, कि आर्टिफिशियल है पॉवर्टी, और इसीलिए द रीजन बीइंग दैट वी आर नॉट कंटेंट इन नेचुरल वेल्थ, ठीक है। We are striving, we are not even striving is a positive word, we are mindlessly obsessed with with luxury, और यही माइंडलेस ऑब्सेशन विद लग्जरी जो है, वो हमें क्या कर रहा है, ग्रीड की तरफ, मतलब हेडोनिस्टिक प्लेजर्स का जो मैनिफेस्टेशन है ना, मतलब मैन क्या हो गया है, हेडोनिस्टिक प्लेजर्स को सीकिंग बहुत ज्यादा हो गया है। और यही रीजन है कि बहुत ज्यादा स्टार्क इनइक्वालिटीज देखी जाती हैं इन डेवलपिंग सोसाइटीज। तो इन्हीं सबको अरेस्ट करना है और यही सब चीजें लिखनी है। व्हाट वुड यू, इनफ डायमेंशंस डेवलप हो गई, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट मिल गए, अब क्या करोगे, वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड।
ठीक है, एंटीथीसिस की इसमें कुछ जरूरत है लिखने की? देखो ये समझा देते हैं कि हर जगह जबरदस्ती की एंटीथीसिस घुसाना भी मतलब फुलिशनेस हो जाएगी। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिकिंग समथिंग हम अननेसेसरीली क्रिटिक कर रहे हैं, तो कुछ एक टॉपिक्स में छोड़ भी देना चाहिए। जबरदस्ती की ओवर रेशनलाइजेशन भी ठीक नहीं होता है। ठीक है, मध्यम मार्ग रखना है अपने को, जबरदस्ती का ओवर क्रिटिसिज्म भी नहीं करना है, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट भी नहीं हो जाना है, और जबरदस्ती का अननेसेसरी। अब यहाँ तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा ना कि कुछ क्रिटिक किया जाए, या लग रहा है? लग रहा है तो कर दो, एक डायमेंशन, एक डेढ़ पैराग्राफ वहां बन जाएगा तुम्हारा। एग्जामिनर को अच्छा लगेगा तो अप्रिशिएट करेगा, ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। So what do we do? What do we do? What is the way forward? कि भाई अब ये हमने इमेंसली एस्टेब्लिश कर दिया। क्या एस्टेब्लिश कर दिया? कि yes, we have validated this argument that contentment is natural wealth and luxury is artificial poverty. अब ये चीज एस्टेब्लिश कर दी है, तो इस चीज को फिर बदलना है, कुछ चेंज करना है कि आर्टिफिशियल जो लग्जरी है वो आर्टिफिशियल पॉवर्टी है। तो जो आर्टिफिशियल पॉवर्टी क्रिएट हो रही है, या फिर पॉकेट्स ऑफ डेवलपमेंट इन द ओशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट क्रिएट हो रहा है कुछ, तो क्या करेंगे हम उस चीज को? ठीक है, हम बेसिक वेलफेयर इंश्योर करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन, या फॉर एग्जांपल वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, ठीक है, इन सब चीजों के माध्यम से जो आर्टिफिशियल पॉवर्टी है ना, ग्रीड है, इसके इंसान को इंटरजनरेशनल ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेज, ये सब चीजें करेंगे। लेसन्स लाएंगे, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स लाइक लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, बेसिक वेलफेयर, बेसिक वेलफेयर मीन्स अमर्त्य सेन की अप्रोच है। क्या करेंगे? कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन, फोकसिंग ऑन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड स्किल्स या एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों पे फोकस करेंगे और लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, पॉलिटिकल चेंजेस करेंगे। ठीक है, अगेन और क्या सजेशन कर सकते हैं, और क्या सजेशन दे सकते हैं? ग्लोबली, sorry for the interruption, globally what we see is that luxury driven over consumption जो हो रहा है, again we can see that it is contributing to लगभग 10% जो है वो एनवायरमेंटल हार्म। जैसे कि वही अगेन 15 आया 16 ले लिया, 16 आया 17 ले लिया। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन? कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन वो होता है जो कि नीड के से ड्रिवन नहीं होता है, स्टेटस ड्रिवन कंजम्पशन होता है। ताकि जैसे कि फॉर एग्जांपल नए कपड़े चाहिए बहुत ज़्यादा, लग्जरी आइटम्स चाहिए, ठीक है, नए नए स्मार्ट गैजेट्स चाहिए, तो ये सब क्या होता है, ज़्यादातर स्टेटस से एसोसिएटेड होता है, स्टेटस सिंबल का पार्ट होता है। एक कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन पे ग्लोबली वी कैन से कि हम कुछ टैक्स रिफॉर्म्स या टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन जिससे लिमिट हो जाए। सिविक कल्चर डेवलप कर सकते हैं, कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, सिविक कल्चर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि जो वैल्यू सिस्टम ऑफ कंटेंटमेंट है उस चीज को अप्रिशिएट किया जाए, जो वैल्यू सिस्टम ऑफ कंटेंटमेंट शुड बी अप्रिशिएटेड, एंड ग्रीड, ऑब्सेशन विद कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, उस चीज को ग्लोरीफाई ना किया जाए। जो कि फर्दर अनफॉर्चुनेटली जो कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन है ना, वो विद द डेडली मिक्स ऑफ द इविल्स ऑफ सोशल मीडिया वो बहुत ज्यादा फर्दर कंपाउंड हो गया है। तो उन चीजों को आई डोंट नो हाउ
हम कंट्रोल करना चाहते भी हैं या नहीं, अगेन दिस इज ऑल्सो ए डिबेट, या चाहते हैं तो कर रहे हैं या नहीं, या कैसे करेंगे, अगेन दिस ओपन्स अप अनदर डायमेंशन, बट चलो ठीक है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये सब हम ऐसा कुछ सजेस्टिव वे में हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। डन, यही सब है। और लास्ट में कुछ अच्छी सी लाइन लिख दो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट रिटन इट ए लाइन फॉर यू टू गिव। ठीक है, ही हु इज रिच इन कंटेंटमेंट, he who is rich in contentment, he rules the kingdom within, and he who chases luxury remains a beggar without. So he who is rich in contentment, he rules the kingdom within, and he who is chasing luxury, he remains a beggar, that is without a kingdom. तो वो beggar ही रह जाएगा जो कि चेज कर रहा है मटेरियल गुड्स को, जिसकी हैप्पीनेस is contingent upon getting new model of iPhone या फिर getting new and conspicuous goods, right? Done. So with this we conclude all the topics for our essay paper। जो भी आठों टॉपिक्स आए थे उन सब के ऊपर डिस्कशन हो गया है। I hope you liked the discussion, and I hope you gained something out of it। With this we conclude this session for today, and hope to see you in the class as well। Thank you।